الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال المصنف المبحث الأول الخبر المتواتر. آج کے سبق کے اندر اصول حدیث اور مصطلحات حدیث کے فن میں ایک بنیادی سبق کو سمجھایا جائے گا، کیونکہ گزشتہ سبق اور اسباق کے اندر آپ کے سامنے حدیث، سند اور متن کی بحث اور اس عنوان کو سمجھایا گیا. کیونکہ حدیث کی تعریف، سند کی تعریف اور متن کی تعریف کو ذہن میں مستحضر رکھتے ہوئے آج کے سبق کو سمجھا جا سکتا ہے. اولاً یہ سمجھ لیجئے، حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قول، عمل، تقریر اور صفت حضور سے نکلتی ہے اور اس کو براہ راست لینے والے اولین لوگ وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، اور صحابہ کرام سے لینے والے ان کے طلباء حضرات تابعین رحمہم اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور تابعین سے ان کے شاگرد تبع تابعین اتباع تابعین رحمہم اللہ علیہم اجمعین ہیں. اس کے بعد جو محدثین ہیں، علماء کا ایک مقدس طبقہ، علمی طبقہ، انہوں نے ان احادیث کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے. مثلا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ رحمتاً واسعہ، انہوں نے حدیث سنی ہے اپنے استاد حضرت امام حماد سے. حضرت امام حماد نے وہ حدیث سنی ہے یحییٰ بن سعید سے. انہوں نے وہ حدیث سنی ہے علقمہ سے. انہوں نے وہ حدیث سنی ہے حضرت فاروق اعظم سے. انہوں نے وہ حدیث سنی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ابو حنیفہ چونکہ محدث بھی ہے اور مجتہد بھی ہے، انہوں نے یہ حدیث یا ان کے طلباء نے اس حدیث کو اپنی کتاب الآثار میں لکھا ہے. اب کتاب کا لکھنے والا محدث اس حدیث کو اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد سے، وہ صحابی سے، صحابی نبی سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. یہ نقل کرنے والے راویان ہیں، اسی کو سند کہتے ہیں، انہی کو رجال اور روات کہتے ہیں. اور جو حضور کا فرمان یا عمل وہ نقل کرتے ہیں اسے حدیث، اسی کو متن کہتے ہیں. تو آج کے سبق میں پہلے یہ سمجھنا ہے کہ حدیث متواتر کی تعریف کیا ہے. تو مصنف فرماتے ہیں کہ حدیث متواتر اس حدیث کا نام ہے، اس مضمون کا نام ہے جس کو حضور سے نقل کرنے والے اتنے صحابہ کہ جن کا ممکن ہی نہ ہو کہ وہ جھوٹ پر اتفاق کریں. ان کی کثرت کے ساتھ صحابہ حضور سے بات کو نقل کر رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حضور نے کوئی بات فرمائی یا کوئی عمل کیا، نقل کرنے والا، آگے بڑھانے والا ایک ہی صحابی ہوتا، 2 صحابہ ہوتے ہیں، 3 صحابہ ہوتے ہیں، کبھی ایک ہی ہوتا ہے. لیکن حدیث متواتر اس حدیث کا نام ہے کہ حضور کے قول، فعل، عمل، تقریر کو نقل کرنے والے ایک صحابی نہیں بلکہ ایک سے بڑھ کر کم از کم 10 صحابی ہونے چاہیے. ان کے 10 صحابی اس بات کو بیان کر رہے ہیں. یہ صحابی بھی کہہ رہا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا، وہ بھی سب صحابہ کہہ رہے ہیں. یہ صحابی کہہ رہے کہ حضور نے یہ کیا، یہ صحابی بھی کہہ رہے کہ حضور نے یہ کیا. اسی طریقے سے 10 صحابی تقریر کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ کسی صحابی نے حضور کی موجودگی میں یہ کیا اور فرمایا، اور حضور نے منع نہیں کیا بلکہ رضا کا اظہار کیا. یہ سب کچھ 10 صحابہ کم از کم دیکھ رہے تھے. ان 10 صحابہ نے اپنے شاگردوں میں اس بات کو منتقل کیا، 10 شاگردوں میں. پھر صحابہ، ہر ایک صحابی کے اتنے شاگرد ہو کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ناممکن ہو. ان کے شاگردوں کے اتنے شاگرد ہو کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ناممکن ہے. یعنی کہ صحابہ سے لے کر اس محدث تک جس نے اس حدیث کو کتاب میں لکھا، اس تک جتنے طبقات ہیں، صحابہ کا طبقہ ہو، تابعین کا طبقہ، تبع تابعین کا طبقہ یا دیگر حضرات کا طبقہ، اس میں روایت کرنے والے، اس کو آگے بڑھانے والے، بیان کرنے والے اتنے لوگ ہوں
कि जिनका झूठ पर इत्तिफाक करना कतई नामुमकिन हो बल्कि मुहाल हो। इनकी कसरत के साथ इस मजमून को बयान करने वाले लोग, कसरत के साथ। यह है हदीस मुतवातिर की तारीफ। और साथ ही हदीस मुतवातिर के बारे में ये उसूल जहन में रखना चाहिए कि अव्वल से लेकर सनद के आखिरी फर्द तक जितने सारे लोग इसको बयान करने वाले हैं वो तीनों तबकात, सहाबा, ताबीन, तीनों अदवार के अंदर सब एक बल्कि बराबर बराबर होनी चाहिए। बराबर इस एतबार से कि उनकी तादाद जितनी अव्वल थी उससे कम बाद में नहीं होनी चाहिए। अगर तादाद बढ़ गई तो अलग मसला है, वो अच्छी बात है, लेकिन तादाद घटनी नहीं चाहिए। और तवातुर के लिए कम अज कम, इसमें तो बहरहाल नजरिए अलग है, बात इतनी है कि नकल करने वाले बेइंतहा हो, इतने सारे लोग हो कि जिनका झूठ पर इत्तिफाक करना नामुमकिन हो। मतलब ये भी बयान कर रहा है, वो भी बयान कर रहा है, वो भी सब एक ही बात कह रहे हैं। इतने सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं, इसके अंदर एक यकीन पैदा होता है, इसमें एक मजबूती पैदा होती है। यह है तवातुर की तारीफ। और मुतवातिर हदीस के अंदर कुछ शराइत है, जैसे मुहक्किकीन अहनाफ के अंदर इब्ने साआती, जिनका इंतकाल 604 हिजरी के अंदर होता है। इसी तरीके से मुहक्किक इब्नुल हुम्माम अलैहि रहमा, उनका इंतकाल होता है 861 हिजरी के अंदर। और शारिह उसूल बज़दवी शेख अब्दुल अजीज बुखारी अलैहि रहमा, हाँ ये भी जो है 8वीं सदी के मुहद्दिस और 8वीं सदी के आलिम, इनका इंतकाल होता है 730 हिजरी के अंदर। और अब्दुल्लाह लखनवी अलैहि रहमा ज़फ़रुल अमानी के अंदर ये अहनाफ के मुहक्किकीन फरमाते हैं कि हदीस मुतवातिर के जो शराइत है उनमें पहली शर्त यह है कि रिवायत करने वाले बेइंतहा लोग। दूसरी शर्त यह है कि इब्तिदा से लेकर इंतहा तक सनद के अंदर जितने भी तबकात है सब तबकात का बराबर होना जरूरी है। अगर पहले तबका सहाबा में 10 सहाबा ने इस बात को बयान किया है, ताबईन में भी कम अज कम इस हदीस को 10 बयान करने वाले होंगे, तब ताबीन में भी इसको 10 बयान करने वाले होंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब सहाबा से हदीस मुंतकिल होती है तो लेने वाले हजारों ताबीन होते हैं, सहाबा ताबीन से मुंतकिल होते हैं तो लेने वाले हजारों तबे ताबीन होते हैं। तो यह सिलसिला रहना चाहिए। तीसरी बात, हदीस की सनद जिस पर खत्म होती है, मसलन साहबी ये कहना चाहिए अपने शागिर्द ताबी से, मैंने इस काम को हुजूर को करते देखा है या इस बात को हुजूर को फरमाते सुना है। यानी कि एक ऐसी चीज के बारे में खबर हो और जिस चीज के बारे में जिस चीज के जरिए से खबर दी जाए उसमें इंसान के 5 हवास, कुव्वत शामा, जायका, लामिसा, और ये जो 5 हवास होते हैं तो इनके जरिए से इसको कहते हैं कुव्वत हिस्स। मसलन इंसान ये कहना चाहिए मैंने देखा, मैंने हुजूर से सुना, हुजूर फरमा रहे थे मैंने सुना, हुजूर कर रहे थे मैंने देखा। इसको कहते हैं अमरे हिस्सिया। किसी ऐसी चीज की इत्तला जो अमरे हिस्सी हो कि मैंने हुजूर को करते देखा, फरमाते सुना। तो सनद के अंदर जो हदीस मुतवातिर हो उसके अंदर एक तो रुवात कसरत से हो, कसीर हो, और इब्तिदा से लेकर इंतहा तक दरमियान के रावियान, आखिरी रावियान, इब्तिदाई रावियान हदीस वो सब के सब बराबर होने चाहे। और साहिब रसूल जिस बात को बयान करता हो वह ऐसी चीज हो जिसको सुना जा सकता हो या देखा जा सकता हो, इसको कहते हैं रिवायत के मुंतहा का अमर हिस्सी होना। यही चीजें मुहक्किकीन अहनाफ ने बदीउल निजाम के अंदर या कश्फुल असरार के अंदर या फतुल कदीर के अंदर या तहरीर के अंदर इन चीजों को तफसील के साथ बयान किया गया। तो अव्वलन हदीस मुतवातिर की तारीफ, मा रवाहु अददुन कसीरुन तुहिलुल आदत तवातुम अलल किज़्ब, कि हदीस मुतवातिर एक ऐसे मजमून का नाम है जिसको बयान करने वाले इतने सारे लोग हो कि जिनका झूठ पर इत्तिफाक करना बिल्कुल नामुमकिन हो। आगे फरमाते शुरूत हो अन यरवीही अददुन कसीर, उसको रिवायत करने बहुत सारे लोग हो। बहुत सारे में सबसे कम कितने हैं?
अकलुल कसरत अशरत अशखास कम से कम 10 अफराद 10 सहाबा ने बयान किया, 10 सहाबा ने हुजूर से इस हदीस को नकल किया हो। और आगे फरमाते अंतु जदुल कसरत फी जमी तबकात सनद, सनद के 3 तबकात होते हैं, सहाबा, ताबीन और तबे ताबीन या दीगर तबकात जो मुहद्दिसीन के यहाँ मशहूर और मारूफ होते हैं। उन हर तबकात में हर तबके के अंदर ये कसरत कम से कम 10-10 अफराद का रावी होना पाया जाना लाजिम और जरूरी है। आगे फरमाते हैं ये जो रावियान जो बात बयान करेंगे उनको किसी अमर हिस्सी के बारे में इतला होनी चाहिए कि ये जो बात बयान करते हैं या तो कौलन हो, फ़िअलन हो, अमलन हो, लेकिन इसके अंदर या तो देखने का मसला हो या तो सुनने का मसला हो। ऐसा मसला नहीं कि जिसका ताल्लुक इंसान के अकल के साथ हो। मसलन साहबी बयान करेगा हुजूर ने वो बात फरमाई है जिसका ताल्लुक इंसान की अकल के साथ है, तो अकली चीजों को बयान करना यह तवातुर नहीं है, बल्कि वो चीजें जिनका ताल्लुक अकल के साथ ना हो, इज्तिहाद के साथ ना हो, कियास के साथ ना हो, बल्कि अमर हिस्सी के साथ हो, उन चीजों पर तवातुर का इतलाक होता है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है, उम्मन हमारे अहबाब जो उसूल हदीस से वाबस्ता है, उसूल हदीस की जो मशहूर मारूफ किताबें हैं जैसे इमाम इब्न हजर अस्कलानी के नुखबा है या तदरीब रावी दीगर है, उसके अंदर जिन चीजों को बयान किया जाता है वहां ये बयान किया जाता है कि हुजूर से जिन सहाबा ने रिवायत को लिया है, अगर सहाबा ज्यादा है तो मुतवातिर, सहाबा कम है तो खबर वाहिद। लेकिन मुहक्किकीन अहनाफ के नजदीक हुजूर से हदीस लेने वाले और हदीस नकल करने वाले जिस हदीस को बयान किया है उसके 3 दर्जे। अगर साहबी एक बयान करने वाला हो तो उसको खबर वाहिद कहेंगे, 1 से ज्यादा और 10 से कम उसको खबर मशहूर कहेंगे, 10 हो या 10 से ज्यादा लेने वाले ऐसे ही आगे चलकर आगे तबकात में उसको हदीस मुतवातिर कहेंगे। यानी अहनाफ, मुहक्किकीन अहनाफ के यहाँ हदीस को नकल करने के एतबार से, उसकी सनद के घटने और बढ़ने के एतबार से हदीस की 3 किस्में हैं, खबर वाहिद, खबर मशहूर और खबर मुतवातिर। यही वजह है कि फुकाहे अहनाफ ने मसाइल के अंदर 3 दर्जात को रखा है, फर्ज, वाजिब और सुन्नत। फर्ज का सबूत होता है हदीस मुतवातिर से, वजूब का सबूत मिलता है खबर मशहूर से, और सुन्नत का सबूत मिलता है खबर वाहिद से। फिक़ही अहकाम के अंदर भी 3 दर्जात है और अहादीस के अंदर भी 3 दर्जात है। और मुहक्किकीन अहनाफ में से काजी अबू ज़ैद अद-दुबूसी ने इस बात को बयान किया है, इमाम सरख्सी ने इस बात को बयान किया है, इमाम बज़दवी ने इस बात को बयान किया है, शार उसूल बज़दवी अब्दुल अजीज बुखारी ने बयान किया है, अब्दुल्लाह लखनवी अलैहि रहमह ने बयान किया है, और अल्लामा मोहम्मद इकरम सिंधी ने इमानुन नज़र के अंदर इस बात को बयान किया है। बल्कि मुहक्किकीन अहनाफ के अंदर जितनी उसूल फ़िक़्ह की किताब हुसामी है, नूरुल अनवार है, उसूल शाशी है, ये दीगर किताबें अल बहस फी सुन्ना के उन्वान में ये 3 चीजें सामने आती है। हर उसूल की किताब के अंदर आपको ये बात नजर आएगी। तो अहनाफ के यहाँ हदीस की 3 किस्में हैं, हदीस मुतवातिर, हदीस मशहूर और खबर वाहिद। और यही बात अल्लामा ज़फ़र उस्मानी अलैहि रहमह ने जो है कवाइद फी उलूमिल कवाइद के अंदर, और अबू बकर जस्सास ने अल उसूल फिल फुसूल के अंदर इसको बयान किया है, अब्दुल्लाह लखनवी ने ज़फ़रुल अमानी के अंदर इस बात को बयान किया है, या दीगर हमारे फुकाहा और मुहक्किकीन ने भी अपनी अपनी किताबों के अंदर इस बात को तफसीलन बयान किया है। बहरहाल मुतवातिर। तो शरीयत के अंदर हजारों मसाइल ऐसे हैं जिनका दर्जा करने के एतबार से फर्ज कतई का है कि जो इनकार करे तो काफिर हो जाएगा, और न करने के एतबार से भी कुछ चीजें वो है कि जिनका करना हर हाल में हराम कतई है। तो चूंकि हमारी शरीयत की जितने अहकामात है या तो वो कुरान से साबित होते या अहादीस से, जो चीज कुरान से साबित हो उसको बहरहाल फिलहाल रहने दिया जाए। अहादीस के अंदर जो सबसे आला किस्म है हदीस मुतवातिर, इस हदीस से जो करने की चीज साबित हो जाती है उसको हम कहते हैं फर्ज है। लिहाजा हदीस मुतवातिर का मुनकिर काफिर होगा, और जो चीज न करने की हो और वो साबित होती हो हदीस मुतवातिर से तो उसका न करना हराम है। जिसने किया और इनकार किया किसी चीज के हराम कतई होने का, जो हराम कतई हो और हदीस मुतवातिर से साबित होता हो, हदीस मुतवातिर से जो जिस चीज का हराम होना साबित हो जाए, कोई शख्स उस हराम का इनकार करे, वो उस चीज के इनकार करने की वजह से काफिर होगा।
اور حدیث متواتر سے جس چیز کا کرنا ثابت ہو جائے اور اس کا فرض ہونا ثابت ہو جائے، اس فرض کا انکار کرنا کافر ہے۔ کیوں؟ یہ حدیث متواتر کا ہی مقام ہے کہ حدیث متواتر سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ بڑی مضبوط اور مؤکد ہوتی ہے، چاہے وہ کرنے کی ہو یا نہ کرنے کی ہو۔ اسی لیے اصول حدیث کی بحث میں آتا ہے کہ حدیث متواتر کا حکم یہ ہے کہ یفید العلم الضروری الیقینی، کہ حدیث متواتر سے جو چیز ثابت ہوتی ہے، جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے، وہ فرض درجے میں ہوتا ہے، یقینی درجے میں ہوتا ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ بلکہ جو متواتر حدیث سے جو چیز ثابت ہو اس کا دل میں اعتقاد رکھنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے، اور اس کا انکار کرنا اور اس کی باطل تعویل اور غلط معنی بیان کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے حدیث متواتر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغمبر ہونا ثابت ہے، اس پر ہزاروں احادیث ہے۔ ہزاروں احادیث سے یہ مضمون ثابت ہوتا ہے کہ حضور تمام نبیوں میں آخری پیغمبر ہے، زمانے کے اعتبار سے، مقام اور رتبے کے اعتبار سے سب انبیاء پر فوقیت رکھتے ہیں، اور تمام احادیث کے اندر قدر مشترک جو مضمون سامنے آتا ہے وہ یہ ہے، اور جو احادیث تمام کے تمام متواتر ہے، کہ حضور کا آخری پیغمبر ہونا یقینی درجے میں ثابت ہوتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہ آ سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر پیدا ہو سکتا ہے۔ تو حدیث متواتر سے حضور کا آخری پیغمبر ہونا ثابت ہوا۔ حدیث متواتر کا حکم یہ ہے کہ جو چیز ثابت ہو جائے اس پر اعتقاد کرنا فرض ہے، اس کو ماننا فرض ہے، جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ جیسے غلام مرزا قادیانی نے احادیث متواتر کا انکار کیا اور حضور کے آخری پیغمبر ہونے کا انکار کیا، بلکہ خود دعویٰ کیا کہ میں ہی آخری پیغمبر ہوں، تو ایسا شخص کافر ہے۔ اسی طریقے سے متواتر احادیث کثرت کے ساتھ صحابہ نے حضور سے ایک ایسا مضمون بیان کیا کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے نازل ہوں گے، لیکن نئے نبی بن کر نہیں، نہ وہ نئے نبی ہو کر پیدا ہوں گے، بلکہ وہ پرانے نبی ہے، حضور سے پہلے وہ پیغمبر ہو چکے تھے۔ دجال کو قتل کرنے کے لیے ان کو آسمان پہ لیا گیا، اب جو وہ قیامت سے پہلے نازل ہوں گے وہ نئے نبی بن کر پیدا نہیں ہوں گے، نہ نازل ہوں گے، پرانے نبی کی حیثیت سے وہ اتریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ کا آسمان سے اترنا متواتر احادیث سے ثابت ہوتا ہے، لہذا جو شخص حضرت عیسیٰ کے آسمان سے اترنے کا منکر ہو اس کا درجہ بھی وہی ہے جو درجہ ختم نبوت کے منکر کا ہے، یعنی ختم نبوت کا منکر جیسے کافر ہے، ویسے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان سے اترنے کا انکار کرنے والا بھی ویسے ہی کافر ہے۔ جیسے کہ ملک پاکستان کے اندر ایک فاسق و فاجر جاوید غامدی، وہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس قسم کا یا اس جیسا نظریہ رکھتا ہے، یا مرزا غلام قادیانی نے خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کا انکار کیا، ان احادیث کا انکار کیا، یا ان احادیث کا ایک غلط معنی باطل تعویل کر کے اپنے آپ کو دائرے اسلام سے خارج کر دیا۔ تو متواتر کا حکم یہ ہے۔ یا اسی طریقے سے آپ دن میں 5 گانا نماز پڑھتے ہیں، ان 5 گانا نماز کی جو رکعات ثابت ہے یہ حدیث متواتر بالمعنی سے ثابت ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص 5 نمازوں کا اعتقاد رکھے لیکن رکعات کا انکار کرے، نہ بھائی میں 4 کے بدلے 3 یا 4 کے بدلے 2 یا 2 کے بدلے 1 یا 1 کے بدلے یا 2 کے بدلے 5 پڑھتا ہوں، 6 پڑھتا ہوں، تو جو شخص تعداد کا انکار کرے یا تعداد میں کمی بیشی کا دعویٰ کرے وہ شخص متواتر احادیث کا منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے بہت ساری روایات ہیں جس کو یہاں پر پیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اپنے موقع پر اس کو پیش کیا جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں متواتر حدیث کی جو تعریف ہے، اس تعریف کے بعد اس حدیث متواتر کا جو حکم ہے وہ یہ کہ اس سے ثابت شدہ مسئلہ اس پر یقین رکھنا لازم اور ضروری ہے، اس کا انکار کرنا، حدیث متواتر کا انکار کرنا، اور جو حدیث متواتر سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہو اس کا انکار کرنا، دونوں کفر ہے۔ ایسا شخص دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ذہن کے اندر یہ بات رکھیں۔ اور ایک بات، حدیث متواتر کے بارے میں علماء کے اندر ایک بحث یہ چلی ہے کہ کیا ذخیرے احادیث میں احادیث متواتر موجود ہے بھی کہ نہیں۔ بعض لوگوں نے اپنے کم علم، کیونکہ اس وقت جو ہے حدیث کا ذخیرہ کتابوں کے اندر دور دور علاقوں کے اندر موجود تھا، لوگ کتابوں کو نہیں لے پاتے تھے، یا دور
जो है एक दराज सफर करना, फिर वहां से हदीस लेना। उस जमाने में हदीस बराह रास्त किसी मुहद्दिस से मुलाकात करने के बाद हासिल की जाती थी। आज के दौर में पूरा हदीस का जखीरा किताबों के सामने है, सोशल मीडिया पे मौजूद है, मोबाइल पे आ सकता है, एक सॉफ्टवेयर बनता है, पूरी हदीसें सामने रहती है। आज फैसला करना आसान है। उस जमाने में एक हदीस मशरिक में मिलती, दूसरी मगरिब में, एक शुमाल में, एक जुनूब में। एक बहुत ही दराज वक्त और जो है एक जमाना दरकार चाहिए था। इस माहौल के पेश नजर बाज़ लोगों ने उस वक्त दावा किया था कि हदीस मुतवातिर दुनिया में तकरीबन बहुत कम तादाद में मौजूद है। बाज़ लोगों ने कहा शायद है ही नहीं, लेकिन इब्न हजर अस्कलानी अलैहि रहमा ने अपनी उसूल हदीस की किताब में उन पर रद्द किया, इब्न सलाह पर रद्द किया, दीगर ऐसे लोगों पर रद्द किया कि ना भाई, इन लोगों का मुताला कम है। उस कम मुताले की वजह से उन्होंने अपने इल्म को बयान किया। हम चूंकि बाद के लोग हैं, हमने देखा है कि ज़ख़ीरे हदीस के अंदर ऐसे अहादीस मौजूद है और कसरत के साथ वो हदीस मौजूद है। उसको भी इंशाअल्लाह कभी तफसील के साथ बयान किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मुसन्निफ ने बयान किया कि हदीसुल हौज़ कौसर, वहां लोगों का आना जाना, उनके दरमियान पानी का तकसीम करना, इन्ना आतेना कल कौसर, इस पर हदीस कसरत के साथ मौजूद है और हद तवातुर को पहुंची है। या इसी तरीके से मसअल खुफैन, चमड़े के मौजू पर मसह करने की अहादीस 70 क्या 100 या 200 साहबा मुल्लिकारी की तहकीक के अलिबा से 200 साहबा ने हुजूर को ये अमल करते देखा और आगे ताबीन के दरमियान इस बात को बयान किया है। या इसी तरीके से नज़र अल्लाह इमरान समिया मकालत फवआ सुम्मा अद्दाहा, ये हदीस भी है कि हुजूर ने फरमाया जिसने मुझसे हदीस सुनी और जैसी सुनी आगे वैसी पहुंचाई। इस हदीस को बयान करने वाले बहुत सारे साहबा। इसी तरीके से मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने मुझ पर कोई झूठ बांधा, कोई गलत बात हुजूर की तरफ मंसूब की, वो अपना ठिकाना जहन्नम में तलाश करे। इस बात को नकल करने वाले बहुत सारे साहबा, बल्कि बाज फरमाते 75 साहबा है जिन साहबा ने हुजूर को ये बात फरमाते हुए सुना है। तो इसका मतलब ये हुआ ज़ख़ीरे अहादीस में मुतवातिर अहादीस कसरत के साथ मौजूद है, बल्कि इस पर मुस्तकिलन काम हुआ। मुहद्दिसीन मैदान में आए और उन्होंने ज़ख़ीरे अहादीस के अंदर उन अहादीस को बिल्कुल अलग किया कि जो हदीस मुतवातिर है। जैसे इब्न हजर अस्कलानी अलैहि रहमा ने अल अज़हार अल मुतनासिरा फिल अखबार अल मुतवातिरा एक मुस्तकिल रिसाला लिखा है। उसके बाद दूसरा कत्फुल अज़हार मुस्तकिल रिसाला लिखा है। और इमाम कत्तानी अलैहि रहमा ने नज़्मुल मुतनासिर मिनल हदीसिल मुतवातिर एक मुस्तकिल रिसाला लिखा है। और इसी तरीके से फुकाहे अहनाफ के अंदर किताबुल लाली, किताबुल लाली मिनल अहादीसिल मुतवातिरा एक किताब लिखी गई है। वो एक मुहक्किक हनफी की, उसने भी उसमें बहुत सारी मुतवातिर अहादीस को बयान किया है। और उस हदीस पर इमाम ज़ुबैदी ने एक हाशिया लिखा, एक शरह भी लिखी है उन्होंने। और माज़ायद उन अहादीस को तलाश किया जो इन मुतक़द्दिमीन उलमा से रह गई थी, उन्होंने उनका ततब्बुर नहीं किया था, न उनको हासिल कर पाए थे। तो इमाम ज़ुबैदी अलैहि रहमा ने बाद में दीगर उन अहादीस को तलाश किया जो मुतक़द्दिमीन उलमा से रह चुकी थी, उन मुतवातिर को इस किताब के अंदर हाशिया और शरह के अंदर बयान किया। इस पर मुस्तकिल इस वक्त भी काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अकाबिर भी काम कर रहे हैं, हमारे मशाइख भी काम कर रहे हैं। तो आज के सबक का जो खुलासा और नतीजा है वो ये कि हुजूर से कसरत के साथ जिस मजमून को नकल करने वाले सहाबा है और सहाबा से कसरत करने वाले नकल करने वाले ताबईन हैं, ताबईन से कसरत के साथ नकल करने वाले तबई ताबईन, इतने लोग कसरत के साथ बयान करते हैं कि जिनका झूठ पर मुत्तफिक होना बिल्कुल मुहाल हो, नामुमकिन हो, बिल्कुल भी काबिल कबूल न हो, इतने सारे लोग बयान करते, इतने सारे लोग बयान करते हैं। इसको कहते हैं मुतवातिर। या आसान लफ्जों में मशरिक वाले कहते हैं कि आफ्ताब निकला, आफ्ताब तुलू हुआ। मगरिब वाले भी कहते हैं, शिमाल वाले भी कहते हैं, जुनूब वाले भी कहते हैं। इतने सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं। इसका मतलब ये बात इतनी पुख्ता है कि इसमें इनकार की गुंजाइश नहीं, इसमें इनकार की गुंजाइश नहीं। ऐसी बात जो ऐसे जराया और ऐसे वसाइल और ऐसे रास्तों से हम तक पहुंचे कि जिन जराया का इनकार करना ही नामुमकिन हो, सब कहते हैं। मसलन बस्ती के अंदर इंतकाल हुआ, पूरी बस्ती का फर्द कह रहे कि फलां का इंतकाल हुआ। अगर एक कहता गुंजाइश की झूठ बोल रहा है, दो कह सकते थे कि मुमकिन है किसका हाफिजा कमजोर हो, कुछ ख्वाब देखी हो, वो बयान कर। लेकिन पूरी बस्ती कह रहे नहीं इंतकाल हुआ। पूरी बस्ती कह रही कि फलां के यहाँ बच्चा हुआ, लड़का हुआ। ये जो इस कदर वसाइल के जरिए से हम तक जो बात पहुंच रही है, इसको कहते हैं मुतवातिर।
तो हुजूर की बात फरमान अमल को लेने वाले इतने सारे लोग हो कसरत के साथ कि जिनका झूठ पर मुत्तफिक होना मुमकिन ना हो कि सारी ऐसा अपोज वनन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सब झूठ बोल रहे हो, नहीं। इतने सारे लोग कह रहे हैं कि हकीकतन कुछ ना कुछ बात तो है। तो लिहाजा अहादीस की एक किस्म, सबसे आला किस्म हदीस मुतवातिर है, इस पर यकीन रखना जरूरी है, इसका इनकार करना कुफ्र है, इससे साबित शुदा मसाइल का इनकार करना कुफ्र है, उन पर अमल करना लाजिम और जरूरी है। करने की चीज जो मामूरात है वो फराइज है, मनहियात है वो हराम कतई है। फर्ज का एतकाद दिल में हो और अमल भी करे, हराम चीज के बारे में दिल में एतकाद हो कि यह हराम है और उससे खुद को बचाए। लिहाजा इसके बारे में ये कुछ चंद मारूजात थी जिसको हमने आपके सामने अर्ज किया। और आखिरी बात मुतवातिर के हवाले से, हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी अलैहि रहमा ने अपनी मतबूआत और अपने अमाली के अंदर इस बात को भी बयान किया कि मेरे नजदीक मुतवातिर के 4 दर्जे, बल्कि इसको तो मुसन्निफ भी फरमाते कि मुतवातिर की 2 किस्में, एक तवातुर बिल लफ्ज होता है, एक तवातुर बिल माना होता है। तवातुर बिल लफ्ज क्या है? हुजूर से हर सहाबी, जितने सहाबा ने उस बात को बयान किया, उस लफ्ज को नकल किया, सब सहाबा एक ही लफ्ज बयान कर रहे हैं, सब सहाबा एक लफ्ज बयान कर रहे हैं। अगर सहाबा नकल करने में लफ्जों में मुत्तफिक हो कि सब सहाबी, जितने सहाबी हुजूर से ये बात नकल कर रहे हैं कि लफ्ज में इत्तिफाक है, किसी का लफ्ज आगे पीछे नहीं, इसको कहते हैं तवातुर बिल लफ्ज, तवातुर बिल लफ्ज। और कभी ऐसा होता है कि हुजूर कोई बात फरमाते हैं, हर सहाबी उस बात को अपने अपने अंदाज में बयान करते हैं, लेकिन मजमून और मतलब सबका एक होता है, इसको कहते हैं तवातुर बिल माना। या इसी को कहते हैं, इसी तरीके से तीसरी शक्ल यह है कि हुजूर से कोई एक अमल साबित है जिसको उम्मत ने हर दौर में कबूल किया है। उम्मत ने, सहाबा ने हुजूर को नमाज पढ़ते देखा है, मसलन सहाबा ने हुजूर को तकबीर तहरीमा में हाथ उठाते देखा है, सहाबा ने हुजूर को हर दुआ करते हुए हाथ उठाते देखा है। जैसे मुसन्निफ ने तैसीर मुस्तलल हदीस के अंदर इस मिसाल को तवातुर मानवी में पेश किया है कि सहाबा बयान करते कि जब भी हुजूर दुआ करते थे उमूमन हुजूर हाथ उठाया करते थे, मुबारक हाथों को उठाकर ही दुआ करते थे। तो सहाबा ने हुजूर को नमाज पढ़ते देखा है, उन्होंने वैसे खुद पढ़ी है। सहाबा ने ताबीन को वैसे दिखाई, ताबीन ने तबे ताबीन को, उन्होंने बाद वालों को, उन्होंने बाद वालों को, उन्होंने बाद वालों को, यहां तक कि वो अमल हुबहू हम तक आया। मसलन तकबीर तहरीमा, रुकू करना, सजदा करना, कादा करना, कौमा करना, इसके अंदर जो कैफियत और कमियात है, सहाबा ने हुजूर को ऐसे करते देखा, सहाबा ने इस बात को वैसे ही आगे बढ़ा दिया। इसको कहते हैं तवातुर अमली, तवातुर अमली। या इसी तरीके से जो कुरान हमारे घरों के अंदर सहाबा ने हुजूर से कुरान सीखा और हिफ्ज किया, अपने तलबा को हिफ्ज कराया, उन्होंने अपने तलबा को ये कुरान सीना बसीना, सफीना बसफीना हम तक आया है। लिहाजा कुरान तवातुर अमली है, तवातुर तामुल है। तो तवातुर की किसी भी किस्म का इनकार करना कुफ्र है। लिहाजा तवातुर अमली हो उसका इनकार कुफ्र है, तवातुर मानवी हो उसका इनकार कुफ्र है, तवातुर लफ्जी हो उसका इनकार कुफ्र है। हां, तवातुर में एक किस्म ऐसी होती है कि जिस तवातुर का ताल्लुक बुनियादी चीजों के साथ नहीं होता है, गैर बुनियादी चीजों के साथ होता है, उसका इनकार कुफ्र नहीं है, वो गुमराही है। उसको मैं इंशाअल्लाह कभी आपके सामने बयान करूंगा। तो ये तवातुर की 4 किस्में सामने रखते हुए, अब जो आज के दौर में एक कौम अकल की दुश्मन और इल्म से कोरे, वो जब भी किसी हनफी मुकल्लिद, जो हकीकत में मुकल्लिद है, जो नफ्स का पैरोकार नहीं, ख्वाहिशात के पीछे पड़ने वाला नहीं, बल्कि हकीकत में, फिल हकीकत में जातन सिफातन जाहिरन बातिनन मुसलमान होने के बाद उसने अबू हनीफा अलैहि रहमा के इज्तिहादात को दीन के लिए, अल्लाह के ईमान को अपनाने के लिए तस्लीम किया, उन पर अमल कर रहा है, ऐसा मुकल्लिद, ये कट्टर मुकल्लिद और पक्का और सच्चा मुकल्लिद कहलाता है। ऐसे मुकल्लिदीन के सामने कुछ नाआकिबत अंदेश लोग आते हैं कि आप फिक़ह हनफिया की सनद पेश करो, फलां किताब के अंदर जो मसले लिखे इसकी सनद पेश करो। हम कहते हैं सनद पेश की जाती है गैर मुतवातिर की, जिसमें तवातुर अमल हो, जो तवातुर बिल माना हो। तवातुर बिल माना और तवातुर बिल अमल, जो अमलन जमानन बाद जमानिन, जीलन बाद तबकतन बाद तबकतन, फर्दन बाद फर्दिन, जमानन बाद जमानिन, मकानन बाद मकानिन, हर जमाने के अंदर
अबू हनीफा अलैहिर्रहमा से लेकर आज तक उनके तलबा तलबा के तलबा तलबा के तलबा तलबा के तलबा तलबा के तलबा आज तक जो सिलसिला हम तक आया है, फिक़ह हनफिया अमलन मुतवातिर है, अमलन मुतवातिर है। पूरी हनफियत हाथों को नाक के नीचे बांधते हैं हदीस को सामने रखते हुए, और अबू हनीफा का अमल है, फतवा है, उस फतवा के पेश नजर ज़मानन बाद ज़मान हर कोई इसी चीज पर अमल कर रहा है। अब अगर कोई कहे कि हनफियत की सनद दिखाओ, हम कहेंगे सनद वहां होती है जहां तवातुर न हो। जहां तवातुर हो, चाहे लफ्जन हो, मानन हो, अमलन हो, वहां सनद नहीं पेश की जाती है। बल्कि इब्न हजर अस्कलानी या दीगर उसूलीन का इत्तिफाक है कि मुतवातिर अहादीस में सनद से बहस नहीं की जाती। जैसे 20 रकात तरावी हरमैन के अंदर पढ़ी जाती है, हुजूर के दौर से पढ़ी जाती है, अब तक पढ़ी जाती है। मशरिक व मगरिब, शिमाल और जुनूब, हर मुसलमान तवातुर के साथ, अहल सुन्नत तवातुर के साथ 20 रकात ही तरावी पढ़ते हैं कम अज कम। लिहाजा आजकल के दौर में जो डिस्काउंट कौम है वो कहते हैं कि 20 रकात की हदीस पेश करो। हम कहें अगर हदीस ना भी हो, हमारे पास एक ऐसी दलील है उसूल हदीस के तकाजे से जिसको कहते हैं मुतवातिर। हदीस मुतवातिर चाहे वो मानन हो या अमलन हो या लफ्जन हो, हदीस मुतवातिर में सनद से बहस नहीं की जाती। हमें सनद की जरूरत नहीं। क्यों? सहाबा ने हुजूर से सनद नहीं ली, सहाबा ने हुजूर से अमल लिया। असल शरीयत में बुनियाद अमल है। सनद एक आर्जी चीज है जिसकी वजह बाद के फितने और बाद के मसाइल और उम्मत मुस्लिम के अंदर मुनाफिकीन का वो दाखिल होना और दखल अंदाजी के खतरा, उन चीजों के पेश नजर सनद को मंजर आम पे लाया गया और इसमें जो है उसूल को मजबूत किया गया ताकि कोई झूठी बात हुजूर की तरफ मंसूब ना हो जाए। लेकिन उम्मत हुजूर के दौर से अमल करती आई। ये एक वो सनद है जिसमें बहस नहीं की जाती है। अमल ही एक बुनियादी सनद है और मुतवातिर बिला अमल एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा वास्ता है जिसमें सनद से नहीं बहस की जाती है। लिहाजा अहनाफ लोग, आपको मुतमईन रहना चाहिए, आपकी 20 तरावी भी काबिल इत्मीनान है, या आपकी दीगर चीजें, आपकी फिक़ह हनफिया भी मुतवातिर है, सनदन मुतवातिर है और अमल के एतबार से उसकी सनद है। अमल दर अमल, कौल दर कौल, फेल दर फेल उम्मत उसको कबूल करती रही। लिहाजा आज के सबक का खुलासा यही है कि मुतवातिर की तारीफ, मुतवातिर का हुक्म, मुतवातिर के शराइत और मुतवातिर पर मुरतब होने वाले असरात और उस पर मुरतब होने वाले अहकामात, अल्लाह हम सब को ये मसला समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें उम्मत मुस्लिमा को इन उलूम से करीब करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्द।